اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ورتل القرآن ترتیلا۔ صلوات محمد وآل محمد وآل محمد۔ تو آج کا پروگرام تھا امتحان کے حوالے سے، ظاہراً آئندہ ہفتے کو ہوگا، تو آج چونکہ پریکٹس کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ مطالب جو اکثر و بیشتر پوچھا کرتے ہیں قرآن میں، وہ مطالب کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی۔ پریکٹیکل سے پہلے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ رتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرے۔ سورہ مزمل یا مدثر کی آیا ہے۔ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ یہ حکم قرآن ہے، ہاں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اور خود قرآن کا ارشاد گرامی ہے، قرآن فرماتا ہے۔ ترتیل کی تعریف علماء قرات نے کیے ہیں، وہ یہ ہیں: حفظ الوقوف و اداء الحروف۔ مختصر تمام تجوید کی کتابوں میں اس طرح سے تحریر ہے، لکھا ہوا ہے حفظ الوقوف۔ اسی لیے اکثر و بیشتر الحم میں بھی، قل هو اللہ میں بھی پڑھتے وقت لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں دیکھیں کاملاً حفظ وقوف نہیں ہوا۔ جہاں وقف کرنا ہے، کرنے کی صورت میں کس طرح سے وقف کیا جائے، اس کا رعایت کرنا چاہیے۔ اگرچہ یاد ہیں، لیکن پڑھتے وقت پھر ہم لوگ بچے ہمارے اور ہماری عوام فراموش کر جاتی ہیں، اس میں دقت کریں۔ اور ادا الحروف، حروف کو، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنے کا نام ہے ادا الحروف۔ حروف کو بھی مخرج کے حساب سے ادا کریں۔ بھئی صاد کا مخرج کہاں ہے، سین کا مخرج کہاں ہے، ضاد کا مخرج کہاں ہے، عین اور الف میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ خدا آپ کو بلا کرے، بڑا جو ہا ہے اس کا مخرج کہاں ہے، چھوٹا ہا کا مخرج کہاں ہے۔ ہر حرف کا اپنا مخرج کو اپنی جگہ سے آپ ادا کرنے کا نام ہے حفظ الوقوف و اداء الحروف۔ یہ خود قرآن بھی خدا بھی ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اور نماز میں بھی یہی ہے، جب آپ سورہ الحم پڑھیں گے، الحم کو اس طرح سے حفظ الوقوف و اداء الحروف کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ الحم پڑھیں گے، اور بار بار یہی تاکید ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے پڑھاتے وقت الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ دیکھیں اس طرح سے جب پڑھایا جاتا تو زندگی بھر الحمدللہ ربی زیر زبر پیش کو کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ پڑھاتے وقت الف زبر آ، با زبر با، سا زبر سا، جیم زیر جی، اس طرح سے تلفظ صحیح ادا بچے نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں بچوں کو پڑھاتے وقت، جس کے نتیجے میں قرآن میں بھی یہ لوگ چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات کے اشتباہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تقریباً عموماً ہو جاتا ہے، جہاں کہیں آپ جائیں دیکھیں بچوں کو پڑھائیں، زیر زبر پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہی حالت الحم میں بھی ہوتی ہے، اور الحم ادا کرتے وقت اس طرح سے بچے ہمارے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی زیادہ فوکس کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ قرآن میں اس دن میں آپ کے خدمت میں کچھ الفاظ ہیں، دیکھیں یہ الفاظ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے مثلا یہ ہیں، قرآن میں کئی بار اس طرح کا لفظ چندین بار تکرار ہوا ہے، صلوات۔ بعض جگہوں میں صلات پڑھا جاتا ہے، بعض جگہوں میں صلوات پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ صلات کہاں پڑھیں گے، صلوات کہاں تلفظ ہوگا صلوات کا؟ اب یہ آپ دیکھیں معنی سے قطع نظر ظاہراً تشخیص کے لیے علماء قرآن نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ واو کے اوپر ڈائریکٹ اگر یہ الف قرار پائے، اس کو کہتے ہیں حمزے کا پایا اگر واو قرار پائے، تو اس صورت میں یہ کیا کہتے ہیں، واو کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیونکہ بعض حروف ہے نا تجوید میں لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں، انہی میں سے یہ ہے۔ واو کا
हमज़े का पाया अगर वाव करार पाए या करार पाए तो वाव और या को नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ये पाया करार पाया है, ये सला तल वुस्ता होगा, ये सलाता होगा, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर यही हमज़े वाव के बाद इस तरह से अगर लिखा जाए तो वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? सलावात। और इसी तरह से सूरह दहर में, सूरह अहज़ाब में 3-4 जगहों में कुछ अल्फाज हैं, वज़न्नून, देखें वज़न्नूना इस तरह से लिखा हुआ है, वज़न्नूना अलिफ के साथ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप तवक्कुफ़ करेंगे वज़न्नूना होगा, अम्मा बिदून तवक्कुफ़ इत्तिसाल के सूरत में नून के वज़न्नूना पढ़ा जाएगा, अलिफ गिर जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। एक दूसरा एक और है उसी कि इसमें कवारीरा, सूरह अहज़ाब या सूरह दहर में कवारीरा इस तरह लिखा गया है, कवारीरा लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, तवक्कुफ़ के सूरत में अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, बिदून तवक्कुफ़ अलिफ के बगैर कवारीरा पढ़ा जाएगा। बाज़ औक़ात बच्चे तवक्कुफ़ बिदून तवक्कुफ़ भी कवारीरा पढ़ते हैं, ये उनको समझाना चाहिए। इसी तरह से सलसबीला है सूरह दहर में, सलसबीला, देखें सलसबीला लिखा हुआ है, सलसबीला। लेकिन जब आप इत्तिसाल के साथ पढ़ेंगे तो सलसबीला ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सलसबीला पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, सलसबी तवक्कुफ़ के सूरत में सलसबीला भी सही है और सलसबील भी सही है। सलसबील भी पढ़ा जाता है और सलसबीला भी पढ़ा जाता है, दोनों आया है क़राअत में, सलसबीला भी और सलसबील भी। कब? तवक्कुफ़ के सूरत में, वक़्फ़ के वक्त। वइल्ला आप इत्तिसाल करके पढ़ेंगे तो सलसबीला ही तलफ़्फ़ुज़ फरमाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कुछ और हुरूफ हैं, जैसा उस दिन भी इशारा किया था, देखें अक्सर बशतर लिखा गया है आना, इस तरह से। बच्चे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर तो अलिफ के साथ लिखा हुआ है, हम कैसे तशख़ीस देंगे यहाँ अलिफ के साथ है या नहीं है? तो उसके लिए कुरान में देखें इस तरह से, इस तरह लिखा हुआ है, यानी छोटा सा सिफर की अलामत लगा देते हैं अलिफ के ऊपर, उसकी अलामत ये कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता है। आप पढ़ते वक्त अलिफ के बगैर, मसलन अनल्लज़ी, देखें अनाल्लज़ी नहीं है, अनल्लज़ी। अच्छा, उसके बाद अना रब्बुकुमुल आला, देखें अना लिखा हुआ है, आप देखें सूरह नाज़िआत में अना रब्बुकुमुल आला है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अना रब्बुकुमुल आला पढ़ेंगे। इसके लिए ऊपर तशख़ीस के लिए इस तरह से अलामत तहरीर फरमाते हैं। वइल्ला अक्सर बेशतर जहाँ कहीं पर भी अलिफ के साथ अना लिखा हुआ है, उसका माना यह है कि इत्तिसाल के वक्त आप अना नहीं पढ़े, अना पढ़ें, अना रब्बुकुमुल आला, अनल्लज़ी, इस तरह से। ये वो कलिमात है कि अक्सर बेशतर कुरान की तिलावत करते वक्त बच्चे और हमारी आवाम वगैरह पूछते हैं। हाँ, ये अलामत इसलिए दिया गया है कि ये आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि इत्तिसाल के वक्त नहीं पढ़ें। अगर इत्तिसाल नहीं किए उस सूरत में तवक्कुफ़ के सूरत में तलफ़्फ़ुज़ करें। मसलन आपका सांस रुकता है, अनाक है, इसका नाम क्या दिया जाए ये किसका? उसका नाम ये है कि आप जज़्म भी नहीं कह सकते हैं, जज़्म नहीं कह सकते, बस ये अलामत क्या है, नाखुंदन है, यानी नहीं पढ़ने की एक अलामत उन्होंने लिखी है, इसकी ख़ास कोई अलामत नहीं है। हाँ, ज़ीरो टाइप का होता है, ये अलामत है कि ये आप इत्तिसाल के दौरान नहीं पढ़े, बस बाकी इसकी कोई अलग से अलामत का नाम नहीं दिया है। इत्तिसाल करते हुए अना रब्बुकुमुल आला पढ़े तो क्या मसला है? किरत के लिहाज से गलत होगा या ये कि नमाज पे फर्क? देखिए उलमाए नहवीन हैं, अना और अना में क्या फ़र्क है? अगर हम लोगों ने कहा अना तो मैं, सही है, अना रब्बुकुल आला, मैं आपका परवरदिगार, जो फ़िरौन ने कहा था मैं आपका परवरदिगार हूँ,
अना में क्या होता है? हम। माना बिल्कुल बिगड़ जाता है ना। अना मुतकल्लिम वहदा का सिगा है, ज़मीर मुतकल्लिम वहदा है। अना में ज़मीर मुतकल्लिम वहदा नहीं है, जमा। तो यहाँ पर क्या है? माना बिल्कुल ही खुदा तो एक है ना। अना रब्बुकुम, मैं आपका परवरदिगार हूँ। तो यकीनन हम आपका परवरदिगार तो नहीं कहता है, मैं आपका परवरदिगार। क्या? नहीं, नहनु जमा के लिए है। अना कहेंगे क्या होगा अना का? नहीं नहीं, अना, अना वहाँ सही है, जज़ाकल्लाह। अना का माने क्या है? वाहिद। सही। नहनु जमा। तो अब यहाँ पर हाँ, अना में माना तब्दील नहीं होता है, सिवाय ये है कि सजा के लिए, कलाम की खूबसूरती के लिए यहाँ पर अना रब्बुकुम अला कहा गया है। आप कह रहे हैं क्रॉस या वो जो जीरो लगा होता है उसे ना पढ़ा जाए, तो ना पढ़ना ज़रूरी क्यों ठहरा जब पढ़कर भी तो सही कहला रहा है? देखिए, एक मरतबा सही है, एक मरतबा ये है कि जायज़ है, एक मरतबा सही है। वाज़ह हो गया। मसलन गैरिल मग़दूबि अलैहिम जायज़ है, अम्मा सही क्या है? हिम सही है। यहाँ पर मसलन अना रब्बुकुमुल आला आप पढ़ेंगे तो बातिल नहीं है, जायज़ है। अम्मा अना रब्बुकुमुल आला फसाहत है, सही है, फसाहत अना रब्बुकुमुल आला है। अम्मा अना गैर फसी है, बातिल होगी, बातिल नहीं है, गैर फसी है। नहीं, गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है, हमज़ा टाइप का नहीं होता, बिल्कुल गोल दायरा होता है, छोटा सा सिर्फ लिखा होता है। नहीं, ना हो तो भी आप देखें, कानून आपको याद हुआ ना, फिर अलिफ नहीं पढ़े। बस दिमाग अगर पढ़े तो बस कोई बातिल तो नहीं है, गुनाह तो नहीं आएगा, लेकिन फसाहत नहीं है। हाँ हाँ, अगर नहीं पढ़े, अगर पढ़े तो गुनाह इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं आएगा, फसाहत नहीं है हुस्न क़राअत के हवाले से। तो उस दिन जल्दी जल्दी से गुज़र गए थे। अभी मुख्तसर कहाँ से छूट गया था? अच्छा, मसलन एक शख्स एक कारी को सूरह फातिहा सुनाता है, वो कहेगा सही है, और वही सूरह फातिहा दूसरे कारी को सुना है, कहेगा सही नहीं है, तो इसमें क्या है? देखें, वो एक कारी कहता है सूरह फातिहा सही पढ़ रहे हैं, एक कारी कहता है आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। इसका माना ये कि जो कारी कह रहा ना सही नहीं पढ़ रहे हैं, यानी दिक्कत को मलहूज़ नज़र रखता है कि मसलन देखें, क़राअत में उस दिन भी शायद आप थे या नहीं थे कि रिज़कारी मुहिम नहीं है अलहम में, कि फ़लान ये है वो है, यहाँ से निकल रहा था, वहाँ से कामिलन आपका ये स्वाद नहीं निकला हुआ है, लिहाजा आपका अलहम बातिल है, आपकी नमाज बातिल है। ये चीज़ें नहीं हैं। फ़कत ये है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला आपके मखरज सुने और कहें कि नहीं ये मखरज अदा कर रहा है, काफ़ी है, मुतवज्जह हैं। वइल्ला इदगाम यहाँ पर नहीं किया है, इख्फा था नहीं किया है, ये चीज़ें खुलासे कलाम नमाज को बातिल नहीं करती हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि मतलब आपकी नमाज सही नहीं है, अलहम सही नहीं है, दिक्कत क़राअत को मलहूज़ नज़र रखते हैं, वो इस तरह कहते हैं। वइल्ला हुक्म शरई को देखा जाए तो बस अल्फाज के अदायगी और तलफ़ुज़ में गलती ना हो, ज़ेर ज़बर पेश में गलती ना हो। बस औक़ात ज़ेर ज़बर पेश को खींच कर पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, वो ना हो। देखिए, थोड़ा नहीं है, देखिए ना, ये कायदे कानून है। कायदा पढ़ाते वक्त आह इह ऊ है, दाह दिह दू है या नहीं है, खुद अकल भी कहती है ना। आप अलहम दू हुआ या दू हुआ, दू है ना, दाह दिह दू है, ज़ेर ज़बर पेश है, उसको आप दू कहेंगे तो वाव आ जाता है, ये असलन खराब है। किस में? वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं खींचे। अब ये गलती से खींच जाता है तो वो अलग बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप कोशिश ये होनी चाहिए। देखें, अगर मुकाबला हुआ, मुकाबले में कोई कारी मोहतरम ज़ेर ज़बर पेश को खींच कर पढ़े, पूरा एक नंबर काट देते हैं, क्योंकि तजवीद में 30% इसका कारबर्द है।
ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचा जाता है। तिलावत करते वक्त अगर किसी ने ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचा, कारी सुनने वाला कहता है कि भाई फसाहत है, फसाहत बलागत के लिहाज से यानी फसी है, यानी कुरान सही से पढ़ रहा है। आप कवायद की जितने भी मुराद करें, ज़ेर ज़बर पेश को खींच कर पढ़ेंगे ना, आपको कभी भी कोई नंबर नहीं रहेगा। इदगाम, इख्फा, इक़लाब तमाम की रियायत करते हैं, लेकिन ज़ेर ज़बर पेश में आप मार खाते हैं तो आप समझें आपने यकीनन काम नहीं किया है। ये इतना मुहिम है, कारबोर्ड हैं ज़ेर ज़बर पेश को थोड़ा सा देखिए, इमाला है वो इंशाअल्लाह तजवीद के मुहिम क़वानीन में हम पढ़ेंगे। बस औक़ात ज़बर है उसको भी इमाला करके ज़म्म की सूरत में पढ़ा जाता है, तामुनुन्ना, इस तरह से। वो क़वाइद के कुछ रुमूज़ हैं वो अपनी जगह, इमाला हैं, इशबा हैं, वाव के तरफ खींचे, वो अलग हैं। बाकी ज़ेर ज़बर पेश को किसी भी हालत में खींचना नहीं है, अपनी तभी हालत में अदा करना। ला नहीं है ना, कहीं पर भी लाजीना नहीं सुना है, सिरात अल्लज़ीन है डायरेक्ट। सवाल ये कि जैसे इन्ना अंज़लना है, तो इसमें गुन्ना इन्ना पे होगा या नहीं होगा? गुन्ना इन्ना अंज़लना, इन्ना देखिए, अगर गुन्ना करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे तजदीद है, जैसे यानी गुन्ना और तजदीद में भी फ़र्क कैसे करते हैं? तजदीद में और गुन्ना में कैसे करते हैं? देखिए गुन्ना आगा, कर रहे हैं या तजदीद है इस वजह से डबल कर रहे हैं? देखिए मवारिद तजवीद के अभास में आएगा जहाँ अम्मा मसलन अम्मा यतसाअलून, गुन्ना मा शिद्दत है, इन्नल्लज़ीना आमनू गुन्ना मा शिद्दत है। ये तजवीद के बाब इदगाम में इंशाअल्लाह ताला इन्ना था तो यहाँ पर आपने इदगाम कर दिया। जब इदगाम करेंगे बाब इदगाम में, इदगाम मा शिद्दत है, तो यहाँ पर हम इदगाम भी हैं और हम शिद्दत भी हैं, यानी आप क्या है, आपकी आवाज़ भीनी से निकल रही होती है, ये है साथ में ज़रूरी है। झटके का थोड़ा फर्क है, अंज़लना पर अगर हम करते हैं गुन्ना करते हैं तो फिर बदल देखिए अंज़लना है या वो तजदीद है? देखिए इन्ना सुने देखिए फ़र्क है। अंज़लना में देखिए, इन्ना में और अंज़ल देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नून साकिन है नहीं है, उसके बाद क्या है, इख्फा होगा, यहाँ पर इख्फा है, वहाँ पर इदगाम है, यहाँ पर इख्फा है। इख्फा में कामिलन क्या है, नून को मख्फी रखना होता है, नून को मख्फी रखें, सदा भीनी से खारिज हो। देखें इन्ना अंज़लना, अंज़लना, ये कह रहा ना, अंज़लना जब हमने किया तो ऐसा महसूस होता है कि अंज़लना के अंदर दो नून है। आप देखिए नून को बिल्कुल तलफ़ुज़ अदा नहीं है, अंज़लना, नून बिल्कुल मख्फी होगा, नून का तलफ़ुज़ नहीं होगा। देखिए इन्ना, इन्ना इदगाम है, अंज़लना देखिए नून के तरफ आप नहीं जाएंगे, अंज़लना बिल्कुल ही नून मख्फी रहेगा। इख्फा का माना ही यही है, नून कामिलन मख्फी रहता है, सदा आवाज़ जो है भीनी से निकलती है। जी जी हाँ, इधर मखरज का मसला नहीं है, यहाँ इदगाम और इख्फा का मसला है। हाँ देखें इन्ना में इन्ना था ना, यहाँ पर दो नून है, नून अव्वल साकिन दरसानी इदगाम हुआ, इदगाम है नहीं है होने की सूरत। हाँ अंज़लना, अंज़लना में चूँकि क़वाइद के मुताबिक अगर नून साकिना व तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून आए, वहाँ क्या है, इदगाम है। अगर नून साकिना व तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए, इजहार है। नून साकिना व तनवीन के बाद भा आ जाए, इक़लाब है। इक़लाब माना क्या है, क़ल्ब करना। क़ल्ब किस में क़ल्ब करेंगे, नून साकिन और तनवीन दर हकीकत में क़ल्ब होंगे मीम में, मिन बादी, मिन नहीं पढ़ेंगे, मिन बादी। और इसके लिए जो उलमा मिसाल बयान करते हैं, एक वरक़ आप लबहाए मुबारक के बीच में रखें, एक वरक़ का फासला होना चाहिए, मिन बादी इक़लाब। और नून साकिना तनवीन के बाद अगर बक़िया हुरूफ आ जाएं, हुरूफ यरमलून के अलावा, हुरूफ हल्की के अलावा, भा के अलावा बक़िया जो हुरूफ रहते हैं जितने भी हैं, आने की सूरत में इख्फा होगा। इख्फा का माना मख्फी रखना, नून को आप मख्फी रखेंगे, मख्फी रख के आवाज़ को, सदा को क्या कहते हैं, भीनी से खारिज करेंगे। अंज़लना इन कुंतुम,
कुंतुम, कुन नून के तरफ नहीं जाएगी आपकी जो है, अगर हम नहीं करते इख्फा और हम कुंतुम पढ़ रहे हैं, बातिल नहीं है, तजवीज़ नहीं सही है, कोई मुश्किल नहीं है, बातिल अनज़लना नहीं अनजलना पड़े कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि क़राअत में, लहन क़राअत में आएंगे न, वहाँ पर अनजलना पढ़ने में ना आपको कोई गुनाह मिलेगा, ना आपकी नमाज बातिल है, कुछ भी नहीं है। सिवाय ये है कि तजवीद के अहकाम में जब आएंगे मुसाबिक़े में आप मार खाएंगे, इनाम नहीं मिलेगा आपको, बाकी कोई मसला नहीं है। आपका नंबर कट जाएगा, वो 30% नंबर कट जाएगा से। अगर यहाँ से थोड़ा पढ़ें तो बेहतर नहीं होगा। देखिए कुछ भी नहीं, फ़कत हरकत ज़ेर ज़बर पेश को नहीं खींचे, कुछ कहीं पर भी हमारी गलती नहीं होगी अलहम में, फ़कत ज़ेर ज़बर पेश की खिंचाव नहीं होनी चाहिए, खिंचाई नहीं। करते हैं लेकिन सांस नहीं लिया जाता, वही ना, देखें सांस वक्फ करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, अब ये वक्फ कर रहे हैं लेकिन मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, आगे खींचते जा रहा हूँ, इसका क्या हुक्म है? देखिए वो दो सूरतें हैं। कुरान में 4 मवारिद ऐसे हैं जहाँ पर देखें सख्त कहते हैं, एक सख्त है और एक वाक़ुफ़ है। मर्राक, देखें सख्त में, वाक़ुफ़ में क्या होता है, सांस भी टूट जाता है और सदा भी रुक जाती है। अम्मा सख्त में सांस बाकी रहता है, जो आप कह रहे हैं सांस बाकी रहता है, अम्मा सदा टूट जाती है। ये क्या कहते हैं, फ़कत 4 मवारिद में वारिद हुआ है, बकिया मवारिद में ये सही नहीं है। लिहाजा वहीं जो तरतील का वो नहीं किया, हिफ्ज़ुल वक़ूफ़ व अदाउल हुरूफ, हिफ्ज़ुल वक़ूफ़ महफूज रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप रुकें, अर्रहमानिर रहीम, फिर आगे मालिक यौमिद्दीन। अगर आप इत्तिसाल करके पढ़ना चाहते हैं तो इत्तिसाल करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। आगा बिस्मिल्लाह, हाँ अल्हम्द। देखिए तलफ़ुज़ गलत तो नहीं है, देखिए क़त्अ नज़र तजवीद तलफ़ुज़ सही है, अगर कहीं इश्तिबाह है तो बता दें इनको। देखिए मलिक यौमिद्दीन उस दिन बताया था, 2 कारी हैं, एक आसिम हैं, 7 कुर्रा में से 3 और इजाफा हुए हैं, 10 कुर्रा है, उनमें से एक आसिम है, दूसरा किसाई है। किसाई और आसिम ने मलिका तलफ़ुज़ किया है, मलिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन अलिफ के बग़ैर। बक़िया कुर्रा ने मालिकी अलिफ के साथ तलफ़ुज़ किया है। फ़कत किसाई और आसिम इन दोनों ने मलिकी अलिफ के बग़ैर तलफ़ुज़ किया है, बक़िया ने अलिफ के साथ तलफ़ुज़ किया है। आगे आखिर में कहाँ मुश्किल हो गई, ज़ीना में ये या को थोड़ा आपने खींचा, ज़ीना का या थोड़ा खींचा, बातिल नहीं है लेकिन तजवीद के फसाहत के लिहाज से आपने खींचा। माँ के देखिए, माँ के झटका नहीं दे दे, माँ के ज़ूब नहीं, मग़दूब नहीं, कलकला कुतुब जद के अलावा कहीं पर भी कलकला नहीं है, मग़दूब अलैहिम, माग़ नहीं है। आगा जज़ाकल्लाह। अब देखिए ज़ेर ज़बर पेश के खिंचाव के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ कामिलन। फ़कत ये आइन हुरूफ मखारिज में थोड़ा सा, मसलन आलमीन आइन का आगा पढ़ें आप। देखें दू, इय्याका नअबुदू, दू नहीं,
بالکل इय्याक नअबुदु डायरेक्ट दू नहीं खींचे, नस्तईन إياك نعبد وإياك نستعين जज़ाकल्लाह। ये हमेशा اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। जज़ाकल्लाह। वहीं उस दिन में बताया था आने नहीं, देखें आने में भी कलकला है, कलकला नहीं है, आने आमता नहीं है, अन आमता मग़दूबी। आगा बिस्मिल्लाह। देखें खिंचाव, अल्हम्दुलिल्लाहि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि डायरेक्ट शाद, ज़ेर ज़बर पेश को नहीं खींचे। जज़ाकल्लाह। देखें का नअबुदु, का नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ज़ेर ज़बर पेश को नहीं खींचे, नहीं का इय्याका। हाँ हाँ देखा, देखें ना सिरात अल्लज़ीन, ना अलिफ के साथ। देखें जहाँ कहीं पर भी अगर हम इश्तिबा हो तो भी वहीं ज़ेर ज़बर पेश, ज़ेर ज़बर पेश को थोड़ा सा अगर जहन को मरकूज़ कर दिया जाए, अलिफ से लेकर या तक आह ई कहते हुए, ये अलहम में किसी भी सूरत में तलफ़ुज़ में ज़ेर ज़बर पेश अलिफ और वाव या के सूरत में तलफ़ुज़ नहीं होंगे। आगा देखिए मुस्ताने मुस्तकीम, जज़ाकल्लाह। आगा बस 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 काफ़ी है, जोश में आ गया है, छोड़ो। आगा बिस्मिल्लाह। कहीं इश्तिबा तो नहीं किया, कोई मर्द है तो निकाल लो। अच्छा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फ़कत यह है कि बस औक़ात इस तरह ना हो कि मसलन अल्फाज जो हैं मिक्स हो जाएं, क्योंकि अरबी में आप मुस्तहज़र हैं कि इय्याका अलग है, नअबुदु अलग है। जल्दी जल्दी से आपने ऐसे नहीं किया है, फ़कत मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से पढ़ने की वजह से इय्याका नब का नस इस तरह से ज़माइर अल्फाज के साथ इत्तिसाल ना हो। वल्ला चूँकि अलग है, इय्याका अलग है, नअबुदु अलग है, व इय्याका अलग है, नस्तईन अलग है। ये अरब सुनने वाला ये तसव्वुर करे कि नहीं ये अलग अलग सा तलफ़ुज़ कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा तलफ़ुज़। आगा बिस्मिल्लाह। का नहीं का वो इय्याका, ला नहीं, सिरातल्लज़ीन डायरेक्ट ला नहीं। बहुत बेहतर हुआ। अच्छा आगा बिस्मिल्लाह।
اب دیکھیں یہاں پر وہ جو ابھی بتا رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہ تھوڑا سی حالت آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ملایا نہیں. دیکھیں آنے ماغے، اس میں تھوڑا سا بات میں پڑھنے والے دقت کریں، آنے عمت نہیں، ماغے ضو بھی نہیں ہے، ولا الضالین، ضاد کا مخرج. آغاز بسم اللہ. آپ کے کہنے کو مطابق اب دیکھیں آغا نے جو تلفظ کیا اس میں جو آپ نے سوال کیا تھا ایاک نعبد، تھوڑا سا الف کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن اتنا دیکھا نہیں جاتا ہے. اگر کوئی ایاک نہیں کہا، ایاک نعبد کا نہیں کہا، ایاک نعبد، تھوڑا سا الف کی طرف مائل ہو، وہاں پر اتنا پتہ نہیں چلتا ہے، سننے والا بھی کہے گا کہ یہ زبر کا تلفظ ادا کر رہا ہے. آغا یہاں اب دیکھیں عین کا مخرج عالمین میں بہت اچھا، انعمت میں نہیں، علیہم میں اچھا. اب دیکھیں عین کہاں سے نکل رہا آپ کو یاد ہے، بلا شک و شبہ یاد ہے مخرج، لیکن بس اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، تو توجہ نہیں ہونے کوئی سے بس اوقات صحیح ادا ہوتا ہے، بس اوقات ادا نہیں ہوتا. 3-4 جگہوں میں آپ نے بہترین طریقے سے ادا کیا، سوائے انعمت میں. انعمت کہاں الف ہے یا عین ہے پتہ نہیں چلا. انعمت پہلا والا الف ہے، بات والا عین ہے، لیکن تلفظ بہت اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں ال نہیں کہیں، ال کہیں. ہاں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بدو زیادہ کھینچا، دیکھیں دوبارہ ایاک نعبد ہاں و ایاک نستعین ہاں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین، یہ قلقلہ میں کیا ملن رعایت فرمائیں. آغا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھیں دوبارہ ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہاں ابھی اچھا ہوا. اهدنا الصراط المستقیم تاقیم تقیم، مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ. آغا پہلے ہفتے میں پڑھا تھا نا آپ نے، نہیں پڑھا؟ بہت اچھا، بہت اچھا ہے. آغا بسم اللہ. سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین شارٹ نہیں، تھوڑا سا آہستہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین
इय्याक नअबुदु नहीं, कनब डायरेक्ट ही मिलाए यानी इय्याक नअबुदु। إياك نعبد وإياك نستعين चलो इतना होता اهدنا है। الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير अनअमता दोबारा पढ़े अन। أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हाँ जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين इय्याक में थोड़ा सा खींचा, إياك نعبد खींचें नहीं खींचे। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हाँ जज़ाकल्लाह। आगा पढ़े आप। हाँ एक चीज़ में हम दोनों शरीक हैं ना, दोनों चश्मे पहनते हैं इसीलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जज़ाकल्लाह। आगा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बाद जगहों में आपने एहसास किया होगा, थोड़ा सा खींचा लेकिन इतना वो ज़्यादा एहसास खिंचाव नहीं होता है उसका। आगा आपने पढ़ लिया ना? हाँ पढ़े। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उस दिन भी पढ़ा था ना आपने, बहुत अच्छा हुआ। देखें उसकी निस्बत से जहन में है, बहुत अच्छा। बस ये जहाँ कहीं भी खिंचाव वगैरह आपने पढ़ लिया ना? आगा आप पढ़ें, आमना सामना है यहाँ पे। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अब देखें गैरिल मग़दूब अलैहिम कहाँ, अलैहिम आइन का तलफ़ुज़ बाद जगहों में बेहतर है, बाद जगहों में बेहतर नहीं है। इय्याक नअबुदु जल्दी से आगे नहीं बढ़े। आगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जज़ाकल्लाह। नस्तईन शाट पढ़े। बाज़ लोग तक़रीबन एहतियात मुस्तहब समझते हैं, मद रियायत मद, मसलन वलाद्दालीन में मद लाजिम है। अगर
इम्तिहान हुआ नहीं हुआ, आइंदा हम आपस में डिस्कस करेंगे मद के हवाले से, क्योंकि मद के हवाले से बाज़ मराजे फरमाते हैं कि मुस्तहब हैं और मुस्तहब ताकीरी करार देते हैं। मद का रियायत करना बिलखुसूस वला ज़ालिम में मद लाजिम है। बाज़ एहतियात मुस्तहब करार देते हैं मद को का तलफ़ुज़ बिलखुसूस अलहम में बाज़ मद मुत्तसिल है, बाज़ मुनफसिल हैं, और जैसे कि ये मद लाजिम है, वला ज़ालिम मद लाजिम है। इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिरन 40 मिनट पूरा हो गए हैं, टाइम ख़त्म हो। आपने पिछले हफ्ते वाद के बारे में 2 मसले बताए थे कि इस तरह से अदा किया जाता है और इस तरह से, वो अगर दोबारा रिपीट करेंगे इस तरह अदा उस तरह अदा फलां, अच्छा ख़त्म हुआ है, छोड़ दें, फ़कत आप तलफ़ुज़ करें, अगर तलफ़ुज़ में गलती है तो मैं बता दूँगा। इश्तिबा करना नहीं करना, सही है ना, सही है बस। नून तनवीन के बाद नून साकिन वाला अगर तनवीन आए तो क्या उसका हुक्म है? हाँ, वो उसमें इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़ाहिरन क्लास से पहले होगा। नून साकिना के बाद, या देखिए तनवीन कहें नून साकिना कहें एक है, तनवीन वही नून साकिना है। नून साकिना के बाद अगर हुरूफ यरमलून आ जाए, यरमलून कौन सा है, यही लफ्ज़ में जो इदगाम हो जाता है, इदगाम हुरूफ यरमलून में। देखिए मन यशा था ना, नून मीम में इदगाम हो, देखिए मन यशा, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगर हुरूफ हल्की हो तो इजहार है, इदगाम होगा। हाँ नहीं गुन्ना, इदगाम है, इदगाम माल गुन्ना है, मन यशा इदगाम माल गुन्ना। यार दो कारी अलिफ पे राजी नहीं है और दो बाकी सारे अलिफ पे राजी, ये फ़र्क क्यों आता है? मतलब मालिकी में कहा ना, मलिकी मालिकी, बस ये कहते हैं इस तरह से इमाम मासूमीन से पैगंबर से इस तरह सुना गया है। बाज़ कहते हैं नहीं इस तरह। देखिए जो नकल कर रहे हैं ना कुर्रा, उन नकल में मुश्किलात हैं। बाज़ कह रहे हैं इस तरह से तलफ़ुज़ हुआ, पैगंबर ज़माने पैगंबर में इस तरह तिलावत करते थे। बाज़ कहते हैं नहीं इस तरह नहीं, मलिकी का तिलावत करते थे। मुकाबले में बाकी कितने 8 हैं। तो तक़रीबन अक्सर बेशतर जो मोतबर समझा जाता है जिसकी क़राअत वो क्या है, आसिम, हाफ़िज़ इब्न आसिम की क़राअत मोतबर समझा जाता है। अलबत्ता हमारे अक्सर इमामिया के मराजे क़ुरा सबा की क़राअत पर इक्तिफ़ा करते हैं, कहते हैं कि किसी भी कारी के जैसा सुना है वैसे तिलावत करे, मसला नहीं है। उनके फतवा ये है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाह।